अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था। मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो। रियलिटी है कि मैं Important question. Producing the film, आप माही को जानते हैं, आप उनकी जर्नी का एक हिस्सा बन चुके हैं. आपके क्या इमोशंस है? What are you going through right now? Can you have the audio lights, please? इमोशन तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जिस तरीके से लास्ट 2 दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बट ये मेरा ड्रीम था, ये मूवी बनाना, और 4 साल के मेहनत के बाद ये मूवी बन गई है. और अब हमारे इसका ट्रेलर लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग आज. और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, नीरज भाई का, सुशांत का, विजय जी का, और ऑफ कोर्स बिकॉज माही यदि कन्विंस नहीं होते तो शायद ये मूवी नहीं बन पाती. सो आज इनको बात करने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. जी सर, जरूर. सर, हम सब MS के लाइफ का एक हिस्सा बनने वाले हैं इस मूवी के जरिए. आपके क्या रिएक्शन थे जब आपने ट्रेलर देखा? मैं एज ए व्यूअर्स उसको देखा तो मुझे ये था कि ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए भी. मैं अपने आप को अलग करके देखा और सोचा तो जैसे ज़िंदगी में आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, बट आदमी के हाथ में अपना काम करना होता है. जो मैं इसे सीखा और उसी पे चलते रहा, सो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंस्पिरेशन मिला है. और आई एम एक्सपेक्टिंग सेम थिंग फ्रॉम मूवी ऑल्सो. We all are expecting and we know it's going to be a super duper. Mr. Vijay Singh, welcome sir, CEO of Fox Star Studios. Sir, as a producer, first of all, such a big responsibility. MS Dhoni, sir, such a big responsibility. Sir, you see it right now, sir, the euphoria. आपने इतनी बड़ी responsibility ली है, and the campaign has begun with a bang. 3-city launch. How does it feel? At Foxstar, we are always looking out for very interesting scripts. But let me tell you that in the life of every studio, very rarely comes a story which is not only an entertaining film, but it is the story that represents the soul of India. And this film represents every one of you and represents India. What can be better? So one message you think will go out to the youth of this country through this film? Well, I believe that this film will tell every Indian that if you have a dream and you work hard towards it, you can make it happen. Well That's said, what sir. MS represents. All right, so I'm going to give you this moment. So, unveil the trailer. Ladies and gentlemen, we are going to be doing trailer unveiling. But, Baru, hold on. We've got to give credit to the director of the film, Mr. Neeraj Pandey, sir. Thank you so much for being here. And very importantly, before we unveil the trailer, my very important question. They just want to see the trailer. Let's be very clear about that. So let's start the trailer and we'll do this Q&A later. All right. Let's have a look at the trailer. After watching the trailer, I hope you guys liked it. It was by and large meant for an audience, and I hope they like it. So, first biopic on Captain Cool in the country. I hope there's only one. I hope, and there should be only one. The kind of pressure or the kind of thing that you went through while making the film, like what was going on through your system? No pressure at all. I mean, it's a fabulous story. It was all in place. He's already lived that life, so it was pretty much easy to just put it on paper and then go ahead. I think Sushant here had a tougher job to do. He had to model himself into this personality next to him. And thankfully, he was by default not doing anything at that point of time. And he had the time and the appetite to sort of work hard, train hard, and deliver what you guys saw just on the screen. But so very importantly, what are the things? It says the untold story.
So what did you discover? Something that we don't know. We would हमें like you क्या to go नहीं see पता? the film to see the untold story. सर एक ऐसा कुछ आपको पता चला है जो किसी को नहीं पता है. मतलब how do you want? अगर मुझे पता चल गया तो मैं आपको अभी बता दूं. हाँ थोड़ा सा आप बता सकते हैं हमारी जनता. I'm sure you all want to know a small glimpse. Okay, he's not that big a milk lover as you guys think he is. I mean, he's not that. Thank you very much, sir. Sure. Well, the moment. Mahendra Singh Dhoni, ladies and gentlemen. So it's been 24 hours. So first of all, honor, privilege to stand in front of you. I think I am very nervous right now. But so 24 hours. So you've done the city tours and more than 1,500 kilometers. How does it feel with the kind of euphoria that you get everywhere that you go? Well, to start off, sorry to keep you guys waiting. You know, they were. So, sorry for that. The moment he mentioned 24 hours, I was like, no, we didn't delay it for 24 hours. So, you guys are not waiting for 24 hours. But, yes, you know, to start off, sorry for the delay. And as far as the promotion of the movie is concerned, yes, we have been to 3 different cities, including Mumbai now. And the kind of response what we have got so far is just fantastic. You know, Jalandhar was brilliant, followed by Delhi, you know, former school of Sushant. And I feel we have got very good reception each and everywhere. As far as going through the process is concerned, you know, it's very tough. You know, frankly speaking, the only good thing, we don't have to walk 1,500 kilometers. You know, you have flights and you can take all of that. But yes, a lot of things get delayed because of the weather and everything. But as far as just the promotion is concerned, you know, I'm very happy that I'm part of it. I have time to be part of it. And more than that, you know, hats off to all the film stars, you know, who do it on a regular basis. And they actually do it for 15, 20 days before the start of the movie, you know, before the movie gets launched. So I think it's a fantastic effort on their side. And we all need to appreciate it, you know, that the amount of effort they put in, you know, leave getting into the character part, acting and everything, you know, it's just that the amount of effort that is put in to make a movie successful, you know. So आपने रिसेप्शन के बारे में बताया, दिल्ली जलंधर के बारे में, लेकिन आमची मुंबई तो आमची मुंबई है भाई. Hey Mumbai, you're not doing well, yeah. Come on. You know, Mumbai is a very special place. Hey, one second. Mumbai is a very special place. From Captain, hold on. Mumbai, if you see, is a very special place. 2007 World Cup, T20 World Cup, when we won, we came back to Mumbai, and you know, quite a few of us from England, we went to South Africa to play the T20. And once we were coming back, we had won the tournament, we were coming back, and it was almost over 3 months. So, you know, that anxiety of being with the family is there. So we are about to land, and I think it was very cloudy, it was raining heavily. And we knew that, you know, we had like a march where we were supposed to go from the airport to the stadium. And I told all my friends, you know what, it seems we'll get an early flight home. Because I thought in the kind of rain that nothing will happen, we'll be at the airport, we'll be able to catch the flight home to respective places and we'll be off. But I was completely wrong. You know, we just got out of the aircraft. Before immigration, there were people. And when I talk about people, lots of people. I had the trophy in my hand. It was a very heavy trophy. It was the first edition. It must be one of the heaviest trophy. I was holding it in my right hand. We started walking. I had to put it like that. And after a while, I realized it's too heavy to carry. But there's so many people, I couldn't lift it up. So it was like that till we crossed immigration and we boarded the bus. And right from the airport till the Wankhede Stadium, there were people on both the sides of the road, and they were so happy. A lot of them would have missed their flight, but still, you know, the cars were parked, all of them were outside, and they had a smile on their face. You know, that's an amazing feeling, because that was the first time you saw like a swarm of people, and all of them were happy. It was raining, the mobile phones were out, everybody was clicking pictures and everything. So that was the 2007. I don't think I need to talk about 2011. But it's just that, you know, we are a bit late for here. So that whole thing of,
Mumbai, it actually slipped, and I was more concerned about being late for the launch. Come on, guys, let's give it an. Oh, come on, that is awesome, man. So, generally, Neeraj sir makes very real films and all of that, and there is a big responsibility of portraying your life. आपकी जो पूरी life story है इस film के जरिए. आपको कैसे लगता है ये जो amalgamation हुआ है film का और आपकी life का? आप थोड़े से worried हैं? कैसे लग रहा है आपको? क्या feeling है? No, I'm not worried at all. I have confidence in all the crew who has worked in the movie. Neeraj especially, right from the start. The good thing was we were on the same page. Because I've seen quite a few of his movies, and I like how he puts things on screen. And I think right from the very start, we were clear, we don't want to make a movie which, makes me a hero or glamorizes me. It was more about the journey so that people can, relate to it. Because we all go through almost the same thing. Okay, everybody doesn't play for India, but at the end of the day, to reach your mark, you have to struggle in life. And it's all circumstantial, small decisions that you have to make that actually has a big impact in life. So it's all about that, the small things. Yes, people know a lot about me. I played football. I was from a particular school. I got a job with the railways, and I moved on and all of that. But what happens in between that is what really, pushes me or transforms me to what actually I am today. So the movie is more about the journey and how I deal with everything, because I keep saying, be in the present, but the movie in a way will actually show what all happened that actually helped me be in the present, or that taught me to be in the present, and how being in present really helped me. So a brilliant blend इस movie के जरिए cricket and अब Bollywood हो रहा है, तो आपको लगता है cricket को एक अच्छे और ज़्यादा brighter light में दिखाएगा इस films के जरिए, आपको लगता है? Well, again, It's a religion in it India. will be like telling the inside, I'm a bit hesitant on that, but as I said, people can easily relate to it. And cricket is a part of the movie. Like how I keep saying, cricket is a part of life. It's not my entire life. In the same way, cricket in this movie is a part of the movie. It's the human feeling and the emotion and everything that's more of the movie in this. So, it's not only cricket. So हमने देखा कि आप private person हैं, आप ज़्यादा जैसे कहते हैं आप you're not very loud. आपकी story बताई जा रही है इस film के जरिए, तो आपको थोड़ा सा nervousness नहीं हो रहा कि अब सबके सामने अब पूरी इंडिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया देखेगी अब ये फिल्म, क्या बोलते हो? It's a bit awkward, to watch your own movie. Movie that's made on you, it's a bit awkward, to be frank. But at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, let's say, अच्छा जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? मैं ऐसे बैठा रहूंगा, दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट. बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा. सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था. मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो. रियलिटी है कि मैं नहीं, रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं. सर हेलीकॉप्टर शॉट सर. सो मूवी में इसने हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा है एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक अ रेप्लिका. सो बहुत एफर्ट डाला है सुशांत ने. एंड नीरज तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. नीरज के लिए मैं आई फील he is one of the best directors.
काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, दूसरे भी अच्छे डायरेक्टर्स, बट आई लाइक जिस तरीके से ये मूवी को प्रोजेक्ट करते हैं, जिस तरीके से इनकी मूवी में जो भी मेन थीम रहता है उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है, इट स्टिक्स टू द थीम एंड दैट्स हाउ इट गेट्स ओवर. सो नीरज के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे. आई थिंक इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है. और आई फेल्ट जितना भी हमने इंटरेक्शन किया, आई थिंक काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, बट आई थिंक नीरज, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हमने एक्सचेंज किया, शेयर किया, तो आई थिंक ही नोज़ अ लॉट ऑफ मी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मी. मैं कैसे सोचता हूँ, अगर मैंने कुछ किया तो मैंने क्यों किया या कैसे किया, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा जानते हैं. तो if you can convince him for an interview, you will get a better interview than really asking me a question, क्योंकि मैं काफ़ी बार बोल जाऊंगा नहीं इस टॉपिक पे नहीं बोल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता. बट सो बहुत ही स्पेशल है मुंबई आपके लिए, टीम इंडिया के लिए. एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे सारे मुंबईकरों के लिए जो गैदर्ड है यहाँ पर, समथिंग दैट यू वांट टू से. नहीं लास्ट मतलब टेंशन मत लो, डोंट सस्पेंस बिल्ड हो रहा है भाई, आराम से. सर, one message to all these fans, all these Mumbaikars who have gathered here, sir. I think for me, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई इज़ वेरी डिफरेंट प्लेस. हर जगह जब आप जाते हैं, दिल्ली बहुत डिफरेंट है, कोलकाता बहुत डिफरेंट है. आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं चेन्नई में 8 साल खेला, 8 साल खेला, तो वहाँ के कल्चर को समझ पाया. मुंबई 2005 के बाद मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया शूटिंग्स वगैरह में. आई फेल्ट यहाँ का जो कल्चर है वो एंटायरली डिफरेंट है. People are very focused in what they do, and the culture is also how they have moved forward in life. How they are willing to help each other, but at the same time they are not very intrusive. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जैसे if you are a celebrity आप बाहर जाके घूम भी सकते हो, लोग आएंगे, they'll ask you for pictures, photographs. अगर आप बोलो नहीं अभी थोड़ा प्लीज छोड़ दो, they are happy, okay thank you, they'll move on. So I feel that's the essence of Mumbai, and I feel that's something that needs to keep moving forward, keep going forward to the next generation, क्योंकि आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेंगी, बिकॉज मुंबई जहाँ तक ज़मीन की बात है तो फैल नहीं सकता है. पॉपुलेशन फैलेगा, गाड़ियाँ फैलेगी, ट्रैफिक फैलेगा, सब कुछ होगा. सो दैट पेशेंस लेवल नीड्स टू गो अप, बट एट द सेम टाइम everything else remains to needs to be there at the same time. Thank you, sir. Thank you so much. Sushant, the man who's played MS Dhoni. So, I think let's give it up for Sushant, man. Nobody could have done this better than him. सुशांत, मुझे याद है हम एक बार मिले थे बाहर, हम ऐसी बात कर रहे हैं. आई रिमेंबर टेलिंग यू दैट आई डोंट थिंक एनी, जब आपका फर्स्ट लुक निकला था, आई सेड बॉस नोबडी कुड डू इट लाइक द वे यू हैव डन इट. सो रियल, सो मतलब इतना पैशन, वो पोस्टर में ही इतना पैशन दिख रहा था. आई वांट टू आस्क यू, दिस इज द मदर ऑफ ऑल बायोपिक्स. मतलब कुछ नहीं, मतलब फॉर एवरी इंडियन सीना तान के खड़ा है यहाँ पर, बोल रहा है बॉस दिस इज इट, लाइक द माइकल जैक्सन मोमेंट, दिस इज इट. I'm telling you how much pressure to get into the skin of the character, and you have done. After this trailer launch, I think, boss, I think, जुड़वा ऐसे लग रहे हैं यार. Seriously, they won. So how much of pressure? I think to start with, it was more excitement than pressure. मैं जैसे एक स्टोरी बताऊंगा. 2007 की बात है या 6 की बात है. बहुत ही तवज्जो, बहुत ही मुश्किल से किसी तरीके से मैं और मेरी फैमिली एमएस तक पहुंच पाए थे, और मैंने एक फ़ोटो खींचा था अपनी फैमिली के साथ. और ही इज़ वन पर्सन, वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन हु आई सीरियसली हैव वेरी इनॉर्मस रिस्पेक्ट फॉर. आई लुक अप टू हिम, एंड सो टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू नो हिज इनसाइड स्टोरी अप क्लोज एंड पर्सनल gave me a lot of excitement, not pressure. And very honestly, there are films in your career, you do it with full honesty and you end up being a good actor. But there are very, very rare films that you do and you end up being a good human being. And this is one of the... What a line, सुशांत यार, क्या बात बोली आपने यार. आपने बहुत रिसर्च किया, जैसे सर ने कहा कि आप इनके पीछे पड़े थे इंफॉर्मेशन के लिए. किस टाइप की रिसर्च हुई यहाँ पर? मैंने पहली बार एमएस को थोड़ा सा अपना कूल जो है वो खोते हुए देखा था. आपका प्रोमो मिल गया. हाँ, पहले 2-3 दिन जब मैं इनके साथ था और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत ही कामली, पेशेंटली, विद अ स्माइल वो सारे आंसर्स कर रहे थे. लेकिन एक बार बोलते यार एक
तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो और मैं आता हूँ 2 मिनट में And सुशांत भाई ऐसा क्या हुआ था, मतलब क्या कुछ हुआ था ऐसा स्पेसिफिक, मतलब क्या पूछा था आपने? नहीं मैं बस एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बार बार पूछ रहा था मेरी आदत अच्छा क्रॉस ऐसे एक बार पूछता था, फिर उसको ना बाएं से पूछता था, आंसर अगर सिमिलर हो तो अच्छा सच बोल रहा है, फिर नेक्स्ट सवाल पे जाता था. एंड आई टोल्ड यू इट वाज अ बिट ऑकवर्ड इनिशियली, थोड़ा ऑकवर्ड है टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है. एक आध क्वेश्चन ठीक है, जब वो 15 मिनट हो जाते हैं लगता है ये मैं कर रहा हूँ. So I was like, मुझे ब्रेक चाहिए, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा. I think you need to give them a big round of applause, ladies and gentlemen. And now, a few selected fans. Sir, I have got an opportunity, Sushant. कुछ fans हैं यहाँ पर जो आप लोगों से सवाल पूछेंगे. एक-एक करके अपना नाम लीजिए. And the lucky few are going to get this opportunity right now. So, Baba, once again. We've got mics passed out there somewhere. Yeah, we've got somebody. Hold on. It's going to happen. It's going to happen. The media question and answers will happen. Can we have the fans, please? All right, can I have your name, please? Hello, sir. My name is Dhruv Verma. My question is for Dhoni, sir. Sir, what lesson the game of cricket teaches you? What game of cricket teaches me? You know, it teaches you a very important lesson in life. I feel cricket it's a great leveler. You know, it levels you out. You know, if you're not humble, it teaches you how to be humble. Cricket एक ऐसा गेम है जो flip of coin से start होता है. You know, toss के ही वक्त पैसा ऊपर जाता है. You don't know head आएगा, tail आएगा. क्रिकेट देखा गया एक ऐसा गेम है जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो 90% ऑफ द टाइम जो ऑपोजिशन का सबसे स्ट्रांग बॉलर होता है वही आपको बॉलिंग कर रहा होता है और जो सबसे खराब फील्डर होता है वही आपका डाइव मार के एक हाथ से कैच पकड़ता है. यू नो, ये ऐसी चीजें हैं जो क्रिकेट में ही होती हैं. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से इट्स अ ग्रेट लेवलर. और हार्ड वर्क जो आपको करना पड़ता है, यू हैव टू डील विथ योर इमोशंस, प्रेशर, जो पॉजिटिव थिंकिंग की बातें होती हैं, and it all relates to you. It all relates to us when it comes to our life. So I feel it teaches you a lot. Again, it is a team sport. So अगर आप दूसरे भी टीम स्पोर्ट अगर खेलते हैं तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे. बट कुछ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ क्रिकेट जैसे गेम में ही होती है. यू नो, अगर आप नाउ टेक्नोलॉजी की बात की जाए, यू नो, इट्स आई थिंक इट हैज़ टू बी टेकन इन अ ह्यूमरस सेंस. यू नो, DRS की अगर बात करें तो डिपेंडिंग ऑन योर लक सेम डिसीजन पे आप आउट भी हो सकते हैं और नॉट आउट भी हो सकते हैं. अगर अंपायर ने आउट दिया है तो आप आउट है, नॉट आउट दिया है तो नॉट आउट है. यू नो, तो ये फर्दर एड्स ऑन टू सम ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्रिकेट. Hi, MS. Over here, on your right side. Behind the cameras. Can you see me? मिस्टर इंडिया नहीं दिख रहे हैं आप. Yep, no problem. My question can be heard. It's Yeah, okay. yes, yeah. Hi, I'm Sumit. MS, my question for you is that before you started playing cricket and you were still an aspiring cricketer and you wanted to get into Team India, where did you see yourself while you were retiring or while you were done playing cricket? Have you already achieved or was something different? Sorry. You'll have to repeat the last part. Okay, so I was saying... सीधा सवाल पूछो ना, आगे का हटाओ. सीधा सवाल जो है सवाल पूछो. सर, सीधा सवाल ये है कि have you achieved what you wanted to achieve from cricket? You know, जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा. आई थिंक इंडिया ए का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूँ. चाहे आज खेलूँ, 6 महीने बाद खेलूँ या 3 महीने बाद खेलूँ. तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है. यू नो, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए. स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है. यू नो, जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है. सो दैट इज द पर्पस. यू नो, माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा. यू नो, माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड है, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था. यू नो, सो it's not about milestone. What it's about is, you know, how much you can contribute, how good you are, and then you take it forward. Hello.
Good evening, sir. My name is Arminda Kapoor, and you are a global icon. And what makes you move every day? What's your mantra of the day, which keeps you going, motivates you? Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present में जो मैं करता हूँ, उसका इफेक्ट आप बोल सकते हो आने वाले फ्यूचर में पड़ता है. So it's the most important thing. So ऐसी कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती. आसपास इतने सारे मोटिवेशन है. आप खुद अपने आप के मोटिवेशन हो सकते हो. फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है. ऑल डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है. तो मेरे लिए जो मोटिवेशन है हो सकता है वो दूसरे के लिए उतना रेलिवेंस ना रखती हो. So every individual is different, and I feel for me, country is the biggest or the most motivating factor for me. Hello, Mahi sir. Sir here. Hi sir. Sir इधर. अरे हटना. Sir, first of all, I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation. And so coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है? सर तो हाँ, और ये दिस इज सवाल ड्रीम फॉर मी. ओके सॉरी हाँ. तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल. तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहना, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी. ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है. आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट. क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे. थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर. दैट्स वाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि हर दिन जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहें, और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें. ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें. और जहाँ तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास 12th के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए. मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि कि एग्ज़ाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है. तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए. मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है. उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आगे खेलो. Hello. My name is Nishi Jain. Hello, sir. Where Nishi Jain? Where is she? Okay, yeah. Straight. Hello, sir. I am Nishi Jain. You live in Mumbai. Who is your favorite Bollywood singer? यार ये बड़ा सिंपल आंसर है, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर. Hello, good evening Mahi sir, good evening Sushant sir here. Mahi sir, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Shrishant, and also before hitting the World Cup winning 6 over long off? Long on. नहीं, जहाँ तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए, तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था. और
जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफ कोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया गया, मतलब 1 बाउंस 4 हो गया। बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट तो जब जब वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा उसमें पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसे ऐसे हो चुका था। मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता। बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में वो सबसे ज्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीजें आपके सामने आ जाती है, छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स व्हाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। और जहां तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए तो इट वाज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई खत्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए। क्योंकि जहां जाओ हर कोई एक ही चीज बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है। क्यों? इंडिया में हो रहा है। मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती है, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज बोलता था। आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे, एवरी टाइम इट वाज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना? और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है। सो इट वाज अ रिलीफ कि हाँ खत्म हो गया। Hello Mahi, this is Rahul, the play card guy. Mahi, this is not a question, actually it is a suggestion. I know some will be some people will सर माइक जरा क्लोज रखिए सर, ऐसे। some people will find it weird, but I want to say to you कि जब भी आप रिटायरमेंट लो तो प्लीज बता के लेना, क्योंकि लास्ट मैच हम ऐसे देखें कि लास्ट टाइम माही खेल रहा है और उस फील के साथ ले, बिल्कुल एडप्टली मत लेना प्लीज। नहीं, अगर बिना बोले लिया तो डेफर्ड लाइफ फिर से मैच चला देंगे। हेलो, हाय एमएस धोनी एंड सुशांत। मेरा क्वेश्चन सुशांत से है। मेरा नाम रश्मि वर्मा है। आपने एमएस धोनी का किरदार निभाकर आपने क्या सीखा? इंटेंस क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत इंटेंस। और सर, मैं आपके पास आकर थोड़ा पिक्चर लेना चाहती हूँ। असल मुद्दा ये है या क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं, और आप जिस तरीके से फिल्म आप देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से पंक्चुएट किया गया है फिल्म में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे जो बार बार एमएस अभी कह रहे हैं, हम बचपन से जानते हैं, लेकिन वो जब हम करते हैं तो उसका अलग ही मजा होता है। हम हमेशा पास्ट में ड्वेल कर रहे होते हैं या फ्यूचर में होते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, सचमुच खुली आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हाय, नमस्कार, एमएस अखिलेश हियर फ्रॉम टीवी 24। एमएस जी, मेरा सवाल आपसे है कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां पे एक्टर क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेटर राजनीति कर रहा है और राजनेता पॉन देख रहा है और पॉन कलाकार स्टार बन रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपने ऑप्शन बहुत ज्यादा दे दिए। लाइफ में जब बड़ा हो रहा था तो ऑप्शन कम थे, क्रिकेट खेलो, पढ़ाई करो। 18 साल की उम्र में जब जॉब लग गई तो एक चीज हो गया कि भाई कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट का जॉब मिला है, क्रिकेट अगर खराब भी करते हैं तो एक रेस्पेक्टफुल जॉब है हमारे पास। आपने अब इतने सारे ऑप्शन देखने हैं तो सब कुछ देखना पड़ेगा, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, किस पर्टिकुलर रोल में लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बट काफ़ी यूनिटी है, काफ़ी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, जैसा कि आपने बोला। आगे का बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा क्रिकेट खेल ही रहे हैं तो अभी उसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। Alright, that will be the last question. We're going to have a photo op session now with Mahi and Sushant.